ڈاکٹرز کی بالکل ٹھیک بات ہے، گھر میں عبادت کرنی چاہیے، رمضان لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے مسجدوں میں، نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے۔ کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے، کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، یہ خوف کے اندر کیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، کھولنے پڑیں گی چیزیں۔ سندھ حکومت نے کورونا سے خوفزدہ ہو کر ایک دم لاک ڈاؤن کیا، اثرات سامنے آنے پر حالات مزید بگڑیں گے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوگا، 12,000 روپے پوری تصدیق کے بعد دیے جاتے ہیں۔ احساس پروگرام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں، سب سے زیادہ پیسہ سندھ کو دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال، طے شدہ نکات پر عمل نہ ہونے پر مساجد بند کرنے کی وارننگ، احتیاطی تدابیر پر عمل ناگزیر قرار۔ ملک کی خاطر شہباز شریف گلے لگا لیں، زرداری صاحب گلے لگا لیں، اس میں خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے، کیسے؟ یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس۔ اتنی بھی کیا ناراضی، ملک کی خاطر شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو گلے لگا لیں۔ دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران شاہد کا سوال، خطرہ ہے انہیں ساتھ ملایا تو کہیں فنڈز ہی ڈراپ نہ ہو جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جواب۔ احساس ٹیلی تھون نشریات خصوصی ٹرانسمیشن میں وزیر اعظم عمران خان کی بھی شرکت، مخیر حضرات کی جانب سے دل کھول کر عطیات، بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پیش رقم طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ ہم جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جان بچانا فرض، مساجد میں جانے سے بیماری پھیلتی ہے تو اس کو روکنا ہے۔ کورونا آسمانی آفت، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں، گناہوں سے توبہ کر کے خالق کو راضی کرنا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل کا اظہار خیال، احساس ٹیلی تھون کے اختتام پر خصوصی دعا۔ یا اللہ، اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، سوئی سے ٹالے گا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا، خارجی اور داخلی محاذ پر درپیش چیلنجز پر بریفنگ، ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، عمران خان کا عزم۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ ہفتہ 25 اپریل کو ہوگا، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزارت سائنس کا نمائندہ بھی اجلاس میں شریک۔ مفتی منیب الرحمان کی مساجد میں 20 نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ کورونا بے قابو، ملک بھر میں اب تک 235 اموات، مریضوں کی مجموعی تعداد 11,057 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 4,767، سندھ میں 3,671، خیبر پختونخوا میں 1,453 اور بلوچستان میں 607 افراد متاثر۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات اور صنعتی عمل کی روانی پر بات چیت، ذخیرہ اندوزی روکنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔
फैसले हुकूमत कर रही है, हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। खुदारा वो तजर्बा ना कीजिएगा जो दुनिया के अंदर वो तजर्बे हो चुके हैं और पाकिस्तान को आप नई तजर्बागाह के अंदर बना रहे हैं। अपील करता हूँ हुकूमत से कि खुदारा अपने फैसले को दोबारा देखें। मुक़्तदर इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इदारों से भी चाहूँगा कि वो लोग कदम आगे बढ़ाएं। उनके साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं, समाजी फासले ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता। हुकूमत और उलमाए कराम मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी करें। सिंध के बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी मुतालबा कर दिया। पंजाब भर में लॉकडाउन, सूबे में सहर व इफ्तार के दौरान दूध दही की दुकानें ओपन, होटल और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रखने का फैसला। पाबंदियों में नरमी का नया प्लान 25 अप्रैल के बाद जारी होगा। सिंध में आज भी दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूबे में अवामी सतह पर इफ्तार दस्तरख्वान पर पाबंदी का फैसला। सरकारी सतह पर भी इफ्तार पार्टियां नहीं होंगी। अवामी मकामात, बड़े हॉल्स में नमाज तरावी की इजाजत ना देने की तजवीज़। लॉकडाउन के दौरान जबरदस्ती दुकानें खोलने का इक़दाम, लोगों को उकसाने का इल्जाम। कराची की मकामी अदालत ने ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला समेत 6 दुकानदारों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध हुकूमत का कारोबारी तबके के लिए एक और पैकेज का ऐलान। प्रोफेशनल टैक्स में 25% कमी, प्रॉपर्टी टैक्स में भी 3 माह के लिए रियायत। नोटिफिकेशन जारी। स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस की मंजूरी। अनडिक्लेयर्ड रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी और चावल समेत दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग तस्वुर होगी। 14 साल कैद होगी। मुल्क भर में फौरी इत्तलाक होगा। बरतानिया में कोरोना मजीद 638 जिंदगियां निकल गया। फ्रांस में 516, इटली में 464, स्पेन में 440 हलाकतें, तुर्की में 24 घंटे के दौरान 115 और ईरान में 90 अमवात। अमेरिका में भी कोरोना से तबाही। आज अब तक 1200 से ज़ायद हलाकतें, मजमूई तादाद 48,000 से भी तजावुज़। पूरे अमेरिका में 8.5 लाख अफराद वायरस से मुतासर। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन के तजुर्बे का आगाज। कारकर्दगी और इंसानी सेहत की हिफाजत के मुतालिक दुरुस्त इशारे मिले तो वैक्सीन साल के आखिर तक दस्तयाब होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का दावा। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सज्जाद। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। यूं पहला रोज़ा 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि उलमाए कराम और मसाजिद इंतज़ामिया नमाज और तरावी के हवाले से हुकूमत के साथ तयशुदा मंशूर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। यकुम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। मैं इस मौके पर पाकिस्तान की तमाम मसाजिद के अइम्मा-ए किराम और मसाजिद की इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो 20 निकाती मंशूर जारी किया है, हम सब समेत आप सब पर उस SOP की पाबंदी लाजमी है।
फवाद चौधरी ये कहते हैं कि 1 साल पहले जारी किए गए कमरी कैलेंडर में पहला रोज़ा 25 अप्रैल को होने की पेशगोई करती थी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने अपने ट्वीट में कहा कि रवां माह की 15 तारीख को भी रोज़ा 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होने की याद दहानी करवा दी थी। बाहमी मामलात को इख्तलाफात के बजाय अक्ल, इल्म और दलील की कसौटी पर परखना चाहिए। इस तरह मामलात बेहतर तौर पर सुलझ सकते हैं। उधर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। बहरीन, कुवैत और मिस्र में भी आज पहला रोज़ा होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में भी जुम्मे को यकुम रमज़ान होगा। नूर की बरसात, रहमतों का नुज़ूल, माह मुबारक की आमद, मरहबा। दुनिया के कई ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत में आज पहला रोज़ा होगा। मिस्र, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी जुम्मे को यकुम रमज़ानुल मुबारक होगा। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली नमाज तरावी अदा की गई, जिसमें सिर्फ मस्जिद के खद्दाम ने शिरकत की। सऊदी अवाम ने इबादत घरों में की। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में रमज़ान के दौरान लॉकडाउन बरकरार, शहरी घरों में नमाज अदा करेंगे। सिंगापुर में भी मसाजिद बंद होने के बाइस अवाम घरों में नमाज तरावी अदा करेंगे। मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अवाम के लिए रमज़ानुल मुबारक में खरीदारी के लिए कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब फ्रांस के वजीर दाखिला का कहना है कि रमज़ान के दौरान मुल्क भर में मसाजिद बंद रहेंगी। बरतानिया ने भी मुसलमानों को इबादत घर में करने का कह दिया। आलमी रहनुमाओं ने रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से पैगामात जारी कर दिए। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अहमियत का अंदाजा हुआ है। उन्होंने रमज़ान की मुनासबत से मुबारकबाद भी दी। सिंगापुर के वजीर आज़म ली हिसन लोंग ने भी रमज़ान की मुनासबत से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आगे बढ़ते हुए कोरोना वायरस की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 235 हो गई है। कोरोना से 11,057 अफराद मुतासर हुए हैं। 2,337 मरीज सेहत याब हुए हैं। पंजाब में 4,767, सिंध 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453 मरीज हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 607, इस्लामाबाद में 214 और आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस हो चुके हैं अब तक, जबकि कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 235 हो गई है। 11,057 अफराद मुतासर हैं, जबकि 2,337 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि डॉक्टर्स की बात दुरुस्त है। उलमाए किराम ने जिम्मेदारी ली, कोरोना फैला तो मसाजिद को बंद कर देंगे। साथ ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने खौफ में आकर लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अब हमें लाजमी जाना होगा। खतरा है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को साथ मिलाया तो कहीं फंड्स ही ड्रॉप ना हो जाएं। वज़ीर आज़म एहसास टेलीथॉन में इजहार ख्याल कर रहे थे। डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, घर में इबादत करनी चाहिए। रमज़ान में लोगों को नहीं निकलना चाहिए मस्जिदों में। नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके अभी असरात आएंगे। कोई गवर्नमेंट अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो एकदम लॉकडाउन कर दिया ना पैनिक करके इन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, ये खौफ के अंदर किया है। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, खोलनी पड़ेंगी चीज़ें। भूख बढ़ती जा रही है। कोई आज ये नहीं कह सकता कि अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें तो फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप से रात बात हुई, उसको डर अगर इकॉनमी ना कोलैप्स कर जाए। दिन में 2,000 लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद वो अब सोच रहे हैं कि पार्शल खोलने का, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है। डैम फंड तो वहीं का वहीं है, 14 अरब रुपया उसमें पड़ा है, तो वो तो उधर ही जाएगा। लोग फॉलो नहीं कर रहे डिसिप्लिन पर एक्शन ले लेंगे। इंडिया की टीम के ऊपर मुझे कई दफ़ा तरस आ जाता था। शारजा में मैचेस होते थे, हम तकरीबन हर जीत जाते थे, तो उनके ऊपर प्रेशर बड़ा होता था। तो मैं कई दफ़ा टॉस करने जाता था उनके कैप्टन के साथ, तो मैं जब उसकी शक्ल देखता था उनके ऊपर घबराहट आई हुई होती थी। मुसलमान दुनिया में स्टेट्समैन महातिर मोहम्मद होंगे और फिर अर्दोगान, जिन्होंने अपने माशरे बदले। महातिर मोहम्मद एंटी करप्शन ड्राइव पे आए, उनके खिलाफ भी सारा स्टेटस को जमा हो गया। सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो उन्होंने किए। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें। इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? क्योंकि वो लोग या फिर बाहर पैसे ले आए वापस।
आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का ये कहना है कि कोरोना आसमानी आफत है, हम इससे लड़ नहीं सकते। अल्लाह ने छोटे से वायरस से दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मसाजिद जाने से बीमारी का खदशा हो तो हिफाजत भी दीन का हिस्सा है। वज़ीर आज़म अकेले और दयानतदार शख्स हैं। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला, अल्लाह मदद फरमाए। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर न हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखना एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो आपने कहा सल्लू फ़ी रिहालिकुम। हम कहा बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? अल्लाह ताला ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.